Hello friend, how are you? Welcome to Tirpan Study Center. Today we are doing most important chapter of history. What is the topic today? Jahangir and Shahjahan. After the Akbar, there is a take for the in charge of Jahangir. Jahangir decided to follow to the Akbar as a explanations policy in the Deccan, but if the Jahangir is could be achieve a little success in it's due to the contain problem. He could not be devoted to the much attention in the crucially phase due to the Kurorams revolt. The Mongol is a noble where is also involved in a number of interests as the confessed to the gain some advantage from a Deccan. During the first 3 years, the Deccan is a regained to half of the Balghat and many districts of the Nagar. The Malik Ambar was the main ruler who is managed to the defeat of the Mughal force and capture to the Bhaira is a Balghat and part of the Ahmednagar. The Mughal could be not be gain is control of the lost of territories, and meanwhile the Shah Jahan is revolted against his the father and become a friend with the Malik Ambar. There is the most important here, and the Malik Ambar is a made an attempt to the capture Ahmednagar but failed there. He took away to the Solapur from Adil Shah and his alliance with the Shah Jahan and tried to the capture of the Brahmanpur but is failed. One space was the established between is Jahangir and Shah Jahan. Is a Malik Ambar was also is a Pacific. The Malik Ambar is died in the 1627 and was the succeeded by his son is a Fateh Khan, was vehicle and the Peshawar of the kingdom. And of Fath Khan was agreement and during this time the confessed between to the Delkins and others noble grey. During the reign of the Jahangir, there was no addition to the Mughal territory in Deccan. In fact, the Deccanics is the rulers weakened the Mughals authorities in their states. However, ambition of the Malik Ambar was a is obstacle in there is a was of the joint from of the Deccan state. During the period of between to the death of the Jahangir and the ascensions of the Shah Jahan, there are Mughal government of the Deccan. There is a Khan Jahan is Lodi with the intentions of the scoring help in the time of the necessity and give away to the Balghat to be Nizam Shah. After the ascending, there is a throw is the Shah Jahan ordered to the Khan Jahan is Lodi to recover its butt as the latter failed. Shah Jahan is recalled him to the court and Khan Jahan is returned to the hostile and the rebelled. He took their shelter with the Nizam Shah and this infuriated is Shah Jahan and decided to follow to aggressive policy and toward the Deccan state. Shah Jahan as a main is a concern was to be recovered to the lost territories of Deccan. He believed that independent of Ahmednagar was a been to the way of Mughal control in the Deccan. He decided to the isolated Ahmednagar and been over to the Bijapur and Marathas. He was successfully is a Fateh Khan, the son of the Malik Ambar, also is made a peace with the Mughals. Now, is Mahabat Khan was appointed to governor of the Deccan, but the confessed with the Deccan state continued. Finally, in 1636 is a treaties where to sign and Vijapur and the Golconda. The main point of agreement with the Vijapur were Adil Shah accepted the Mughals as a suzerainty and he was to pay up 20 lakh rupees in indemnity and he was not to interfere in the affair of the Golconda. The Mughal Empire was to the arbitrate in the case of any debt job between to the Vijaypur and the Golconda. Adil Shah to help the Mughal in a confessed against the Sahaji Bhosle. Golconda also made a separate treaty and according to this treaty is the first year Golconda took a author of the loyalties is the two awards, our Mughal Empire.
He agreed to include the name of the Mughal Empire in a Khutbah, and the excuse there is the name of the Shah of Iran. And Golconda agreed to pay to the 2 lakh huns per year to be Mughals. And treaties is ended their confessed in the Deccans. The Mughals could expand their area of dominance to the large part of the southern India. A distinct change in the Mughal policy come to about to the 1656 to the 57, when the treaties were to the ignored. Now Shah Jahan asked to the Aurangzeb to the conquer and annexes the territories of Deccan Kingdom. It is argued by there are some historians that his change of policy was to the exploit to the resource of the Deccan state for the Mughals. However, this change did not benefit the Mughal Empire in any substantial way and they create the more problem for the future. जैसा कि हम बात कर रहे हैं जहांगीर और शाहजहां, देखिए कहते हैं जहांगीर ने जहां पर आगे इसको बढ़ाया, शाहजहां ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। कहते हैं पिता और पुत्र का जो ये जोड़ी थी काफ़ी अच्छा था अकबर के बाद, तो दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। जहांगीर ने दक्कन में अकबर की विस्तार नीति को अपनाया, परंतु कुछ समस्याओं को कारण उसे इस काम में बहुत ही कम सफलता मिली। कहते हैं खुर्रम की बगावत की वजह से पैदा हुई संकट के कारण वह इस तरफ अधिक ध्यान नहीं दे पाया और दक्कन से कुछ फायदा उठाने के लिए मुगल अभिजात वर्ग भी उसके षड्यंत्रों और लड़ाइयों में शामिल हो गया था, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट था। जहांगीर ने अपने पिता अकबर की तरह जो है पूरा जो है नीति नहीं अपना सका और नहीं विस्तार कर सका। कहते इसका कारण जो था यहाँ पर षड्यंत्र लड़े जा रहे थे और लड़ाइयाँ हो रहे थे, तो इस कारण जो है ये आगे नहीं बढ़ा पाया इम्पल्स को। पहले 3 वर्ष के दौरान दक्कन में जो है बालाघाट और अहमदनगर के काफ़ी जिलों को फिर से हासिल कर लिया गया था और मलिक अंबर इसमें से प्रमुख शासक था, जिसने मुगल सेनाओं को हराकर बरारा और बालाघाट और अहमदनगर के कुछ भागों को वापस जीत भी लिया था। हारे हुए प्रदेश पर मुगल फिर दोबारा कब्जा हासिल नहीं कर सके। इस दौरान शाहजहां ने अपने पिता के खिलाफ बगावत कर दी और मलिक अंबर से जो है मित्रता स्थापित कर ली। ये भी बहुत बड़ी दौर थी जहां पर शाहजहां ने अपने पिता जहांगीर से जो है बगावत करके अलग ही हो जाने की कोशिश किया, जिसकी वजह से घर में जो है एक दरार सी पड़ गई। मलिक अंबर ने अहमदनगर पर कब्जा करने की कोशिश की मगर असफल रहा। उसने जो है आदिल शाह से जो है शोलापुर छीन लिया और शाहजहां के साथ मिलकर जो बुरहानपुर पर जो है कब्जा करने की कोशिश भी की, परंतु असफल रहा। और एक बार तो जहांगीर और शाहजहां के बीच शांति स्थापित हो भी गई थी, लेकिन मलिक अंबर भी शांत हो गया और सन जो है 1627 में जो मलिक अंबर के मृत्यु की हो गई और साम्राज्य के वकील और पेशावर के रूप में उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र जो है फतेह खान बन गया। फतेह खान बहुत ही आक्रामक और प्राकृतिक का था और वह उसके शासन के दौरान दक्कनी और अभिजातों के बीच परंपरा लड़ाई शुरू हो गई थी। जहांगीर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य में दक्कन में कोई भी प्रदेश शामिल नहीं हो सका था। ये बहुत बड़ी विडंबना थी कि जहांगीर के समय काल में कोई भी जो है साम्राज्य में शामिल नहीं हो सका था। असल में दक्कनी शासकों ने अपने प्रदेशों को मुगल साम्राज्य को बहुत कमज़ोर बना दिया था। मलिक अंबर की अति महत्वाकांक्षा दक्कन प्रदेशों को संयुक्त मोर्चों के राह में एक बहुत बड़ी बाधा बनकर उभरी थी। जहांगीर की मृत्यु होने और शाहजहां के राज सिंहासन में बैठने की अवधि के दौरान दक्कन के मुगल सूबेदार खान जहान लोधी ने जरूरत के वक्त मदद लेने के इरादे से बालाघाट निजाम शाह को दे दिया था और सिंहासन बैठने के बाद शाहजहां ने जो है खान जहान लोधी को जो है बालाघाट वापस लेने का आदेश दिया, परंतु वह उसमें असफल रहा और इसके बाद शाहजहां ने उसे दरबार में वापस बुला भी लिया। इस पर जो है खान जहान उसका दुश्मन बन गया और उसने बगावत कर दी। उसने जो है निजाम शाह के पास जाकर आश्रय ले लिया और इसने जो है शाहजहां को क्रोधित कर दिया और उसने दक्कन प्रदेशों के विरुद्ध आक्रामक रुख अपनाने का भी निर्णय कर लिया गया। शाहजहां का मुख्य उद्देश्य था दक्कन के खोए हुए प्रदेश को वापस हासिल करना। उसे विश्वास था कि दक्कन में अहमदनगर की स्वतंत्रता जो है मुगल नियंत्रण के आड़े आ रही थी
और उसने अहमदनगर को छोड़कर बीजापुर और मराठों को जीतने का निर्णय भी किया। इसमें उसे सफलता मिली। मलिक अंबर के पुत्र फौत खान ने अपनी मुगलों के सुलह कर ली और अब जो है फतेह खान को दक्कन का सूबेदार भी नियुक्त कर दिया गया। परंतु दक्कन के राज्यों के साथ लड़ाई अभी भी जारी रही। अंत में सन 1636 में बीजापुर और गोलकुंड के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। बीजापुर के साथ समझौते कुछ शर्तें यहाँ पर दर्शाया गया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं बीजापुर के समझौते की कुछ शर्त दिया है जिसमें साफ बात ये दर्शाई गई थी कि जो आदिल शाह मुगलों की अधीनता स्वीकार करेगा, सबसे पहली बात थी। दूसरी बात ये थी कि उसे 20 लाख रुपए जो है क्षतिपूर्ति के रूप में देने होंगे। तीसरी बात थी कि वो जो है गोलकुंडा के मामले में कोई जो है दखल अंदाजी नहीं करेगा। साथ में बीजापुर और गोलकुंड के बीच कोई विवाद होने पर मुगल शासक उसका जो है बिचौली होगा। कहते शाही जी भोसले के खिलाफ लड़ाई में जो है आदिल शाह मुगलों की सहायता भी करेगा, इस बात पे भी जोर दी गई थी। गोलकुंड ने भी एक संधि पत्र तैयार किया। इस संधि पत्र के अनुसार कुछ बातें इस प्रकार थी कि गोलकुंड के ने मुगल शासक के प्रति वफादार की शपथ ली है। उसने मुगल शासक के नाम को जो है खुतबा में स्वीकार करने की सहमति भी दी है और ईरान के शाह का नाम छोड़ दिया है। गोलकुंड के मुगलों के 2 लाख ऊँट प्रति वर्ष देने की सहमति भी जताई गई है। इन समझौते से दक्कन में लड़ाइयों का अंत हो गया और अब मुगल अपना अधिकार क्षेत्र दक्षिण भारत के अधिकांश क्षेत्र तक फैलाने में कामयाब भी हो सका। और कहते हैं 1656 से 57 में जब इन समझौतों को अनदेखी की गई तो मुगल नीति में एक विशिष्ट तब्दीली आ गई। अब शाहजहां ने अंग्रेजेब से दक्कन के साम्राज्य को सभी प्रदेशों को जीतकर मुगल साम्राज्य के साथ जोड़ने का आदेश भी दे चुका था। और कुछ इतिहासकार ने यह तर्क भी दिया है कि इस नीति को बदलने का कारण था दक्कन के प्रदेशों में उपलब्ध संसाधनों का दोहन करना। परंतु इस परिवर्तन के मुगल साम्राज्य का कोई खास लाभ नहीं मिला, बल्कि इससे भविष्य के लिए और अधिक समस्या पैदा कर दी। कहते हैं ये समस्या जो थे औरंगजेब के लिए काफ़ी जो थे घातक सिद्ध हुआ और कहते हैं औरंगजेब के बाद जो है शासन चलना स्वाभाविक बात ही नहीं बना।